گلگت بلتستان کا انتخابی میدان اکھاڑے میں اتر گئے پہلوان 23 حلقوں میں زور کا جوڑ ووٹنگ جاری پولنگ سٹیشنز کے باہر لمبی قطاریں شام 5 بجے تک ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت کچھ مقامات پر پولنگ کے عمل میں سست روی کی شکایات تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کانٹے کا مقابلہ گلگت بلتستان میں خواتین ووٹرز کا جوش و خروش دیدنی سردی کے باوجود پولنگ کے عمل میں بھرپور شرکت 7,45,361 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے 4 خواتین امیدوار بھی میدان مارنے کے لیے پرعزم گلگت بلتستان الیکشن تمام پریزائڈنگ آفیسرز کو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے اختیارات تفویض 318 پولنگ سٹیشن حساس اور 418 انتہائی حساس قرار 46 پولنگ سٹیشنز برفانی علاقوں میں قائم ووٹرز اور پولنگ عملے کے لیے فیس ماسک اور کورونا SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار گلگت بلتستان انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات 13,481 اہلکار تعینات پیراملٹری فورسز بھی الرٹ استور اور وادی نلتر میں شدید برفباری سے مشکلات غزر کے بالائی علاقوں میں بھی سفید گالوں کی برسات ووٹرز اور امیدوار پریشان خراب موسم کے باعث گلگت بلتستان میں کچھ پولنگ سٹیشنز پر بجلی منقطع آج کے الیکشن کے بعد گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت اب کراچی اور جنوبی بلوچستان کے بعد گلگت بلتستان کے لیے بھی تاریخ ساز ترقیاتی پروگرام پر کام ہوگا وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ عوام آج نئے گلگت بلتستان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں شفاف انتخابات گلگت کی ترقی اور خوشحالی پر مہر ثبت کریں گے احساس محرومی کا خاتمہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اولین ترجیح ہے فردوس عاشق عوام منفی سیاست کے باعث اپوزیشن کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم کرپٹ عناصر ایماندار وزیر اعظم کے سامنے بے بسی کی تصویر بن چکے قوم کا پیسہ لوٹنے والے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کورونا کی دوسری لہر مزید 32 افراد جان سے گئے اب تک 7,141 اموات 2,443 نئے مریض بھی سامنے آ گئے ملک بھر میں 3,56,904 شہری متاثر ایکٹیو کیسز کی تعداد 26,538 تک پہنچ گئی کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ شہری پھر بھی لاپرواہ SOPs کی کھلا خلاف ورزی ماسک کا استعمال نہ سماجی فاصلے کا خیال بازاروں مارکیٹوں میں رش مسلسل بے احتیاطی سے صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ بھارت اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب افغانستان میں 66 ہندوستان میں 21 تربیتی مراکز موجود انڈیا کی جانب سے ٹریننگ کے ساتھ اسلحے کی بھی فراہمی سرحد کے ساتھ بھارتی قونصل خانے سازشوں کا گڑھ ہیں DGISPR سبزیاں بھی پہنچ سے دور عوام فاقوں پر مجبور کوئٹہ میں ٹماٹر 120 ادرک 500 شملہ مرچ 100 روپے کلو میں فروخت فلاحی ریاست کے دعوے دار کہاں ہیں 2 وقت کی روٹی کو ترستے شہریوں کی دہائی سبزیوں کے ریٹ بھی بالکل ہائی ہو چکے ہیں اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو بھی چیز لینے جاتے ہیں بہت مہنگی مل رہی ہے منڈی سے مہنگا ہوتا ہے ادھر مہنگا بیچتا ہے مجبور ہم کیا کروں اس سے اسلام آباد راولپنڈی میں موسلادھار بارش نشیبی علاقے زیر آب کئی فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی کی آنکھ مچولی ساہیوال فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں بھی بادل برس پڑے سردی کی شدت میں اضافہ جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں مطلع ابر آلود السلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں زید
मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। आगाज इस अहम खबर से FIA की चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। जहांगीर तरीन, अली तरीन, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA ने इन तमाम अफराद के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज किए। अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगाई गई है। चारों मुल्जिमान के खिलाफ FIA में चीनी स्कैंडल समेत मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ राहिल सैयद। राहिल, आगाह कीजिएगा, इस मुकदमे से मुतालिक कौन सी दफात शामिल की गई हैं? FIA की जानिब से जो है जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और चीनी स्कैंडल के हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी था। तकरीबन 3 से 4 माह तक ये जो है वो तहकीकात की गई। स्पेशल JIT बनाई गई थी जिन्होंने अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन, अली तरीन, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस वजह से बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन की फैमिली के खिलाफ 4.35 अरब रुपए का जो है मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि शहबाज शरीफ की जो फैमिली है उनके खिलाफ 25 अरब रुपए का जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर दफात के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया। जो दफात लगाई गई हैं वो 409 है, 420 है, 517 है। ये दफात जो है वो लगाई गई हैं। दोनों फैमिली के खिलाफ अलग अलग जो है मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए। जब इस केस की तहकीकात की जा रही थी तो सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के खिलाफ ये बातें सामने आई थी कि इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो बोगस जो है और फेक जो है अकाउंट खोलेंगे जिसमें ट्रांजेक्शन हम लोग थे जो उनके फैक्ट्री में जो है वो मुलाजमीन थे और उन्होंने जो है यहाँ पर जो है वो तहकीकात फैक्ट्री में मुलाजमीन थे और उनके अकाउंट्स में जो है वो पैसे ट्रांसफर जो है वो किए गए थे। इसी तरह जहांगीर तरीन के बारे में बताया गया कि उनकी जो कंपनी है, मरकजी कंपनी जो है JDW, उसके बाद जिले जो है वो कंपनियां बनाई गई थी और उसमें जो है ये पैसा ट्रांजेक्शन जो है इन पैसों की गई थी। FIA ने तमाम शवाहिद और जो है बयान कलमबंद करने के बाद जो है वो अब तरीन फैमिली और शहबाज की फैमिली के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो JIT की टीम को जो है हिदायत भी जारी की गई है कि जो मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं उनको गिरफ्तारी भी जो है वो की जाए, क्योंकि जहांगीर तरीन और अली तरीन को जो है FIA की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे लेकिन वो दोनों पेश नहीं हुए थे। उनकी जानिब से बयान ये जमा करवाया गया था कि वो बैरून मुल्क मुकीम है और इसलिए वो जो है वो तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हो सके। सलमान शहबाज को जो नोटिस जारी करवाया गया था वो भी बैरून मुल्क मौजूद थे लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब जो है वो जमा नहीं करवाया गया था। हमजा शहबाज के हवाले से जो है वो JIT की एक टीम ने जाकर जेल में तहकीकात की थी, क्योंकि जब वो रमजान शुगर मिल में डायरेक्टर थे तो उनके दौर में जो है कुछ फेक अकाउंट जो है वो सामने आए थे, उस वाले से तहकीकात की गई थी और तमाम गवाहों के क्या बयान जो कलमबंद करने के बाद FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और जो चीनी शुगर में जो है मुख्तलिफ दफात के तहत दोनों फैमिली के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी अच्छा राहिल सैयद, जिस तरह से आपने बताया इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, अलहदा अब गिरफ्तारी की कोशिशें की जाएगी, उसके बाद कानूनी तरीकेकार क्या होगा? चालान किया जाएगा इन तमाम मुल्ज़िमान को अदालत में? जी पहले तो जो है जाहिर सी बात है पर्चा दर्ज हो गया तो गिरफ्तारी की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन पहले ही हमजा शहबाज और सलमान जो शहबाज शरीफ है वो तो जेल में मौजूद है, सलमान शहबाज जो है बैरून मुल्क है, जहांगीर तरीन पाकिस्तान आए। अब देखते हैं वो कि वो जमानत करवा के शामिल तफ्तीश होते हैं या FIA उन्हें गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश करती है। तो कानूनी जो राह है वो FIA की JIT जो है वो अपनाएगी और कानूनी तरीके से जो है इस तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जो इल्जाम लगाए गए हैं, जो शवाहिद आए हैं, उसको जो है अदालत में साबित भी किया जा सके। और क्योंकि अब ये ट्रायल जो है वो अदालत में भी चलेगा, फर्दर जुर्म आयद होगी और दीगर जो है गवाहों के बयान वो कलमबंद किए जाएंगे, तो कानूनी तरीकेकार है जो है वो गवाहों के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। राहिल सैयद, शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान सज चुका है, अखाड़े में उतर गए हैं पहलवान। 23 हलकों में जोर का जोड़, वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जबकि पोलिंग स्टेशंस के बाहर इतने सर्द मौसम में भी लंबी लंबी कतारें लगी हैं। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने का यह सिलसिला जारी रहेगा। कुछ मकामात पर पोलिंग के अमल में सुस्त रवि की शिकायत भी रिपोर्ट हुई हैं। जी हाँ, अब देखना यह है कि यहाँ पर शेर धाड़ेगा, बल्ला चलेगा।